Hello students. So today we will discuss method of differentiation, and this is the last topic of method of differentiation, and after that we will be continuing only in discussion of the PYQs. PYQs is very important, so you have to focus at this also. But now we are going to discuss the last part of the method of differentiation, and that is problems based on first definition of derivatives. Okay, so what was that definition? So that definition was, as you know, that definition was f dash x equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx divided by h. Okay, सो दिस वाज द डिफिनीशन. तो अब हम इस डिफिनीशन का यूज करके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती हैं, उनके लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है, तो हम इसका यूज करेंगे और इससे क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं. ठीक, तो अब हम पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. हमारे पास दिया हुआ है एक फंक्शनल इक्वेशन, और इसमें केवल कोई थ्योरी नहीं है. ठीक ना, इसमें कोई थ्योरी कुछ है, क्या ही थ्योरी हो सकती है. तो केवल क्वेश्चन है और क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. A function f such that from R to R satisfy the equation fx plus y equal to fx into fy for all x and y belongs to real number, and fx not equal to 0 for all x belongs to real number. If fx is differentiable at x is equal to 0 and f dash 0 is equal to 2, then prove that f dash x is equal to 2fx. Okay, so हमको ये प्रूफ करना है. ठीक, तो आइए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो इसका हम यूज करेंगे और ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x plus h. So in place of y you can write h, and this is going to be f x into f h minus fx divided by h. Okay, so you can take the fx common and you will get f h minus 1 by h. Okay, this is what you are getting. And limit h tending to 0. So when you put limit h tending to 0, f of 0 minus 1 by 0. So f0. Okay, f0, what is the value of f0? We don't know that. Let's try to find the value of that with the help of this. And what we can do, we can do one thing, and that is, let's x and y both equal to 0 and put in this functional equation, and you will get f of 0 equal to f0 and f0, and you can take f0 common, so you will get two values of f0, that is 0 and 1. But as you know that fx cannot be 0, दिस कैन बी नेवर जीरो. तो कभी जीरो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब ये है कि एफ जीरो को वन होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? एफ जीरो को वन होना पड़ेगा. तो जब वन होगा तो वन माइनस वन बाई जीरो, तो आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगा. क्या बन जाएगा आपका? जीरो बाई जीरो फॉर्म. तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा वास्तव में, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट this function, and so if you want you can use here L'Hopital rule also. Okay, so basically this is going to be what? This is going to be limit, not limit, write only fx, multiply by limit f h plus 0 minus f0, that is 1 by h. So basically this is the f dash 0. What is this? This is the f dash 0, and value of f dash 0 is what? Value of f dash 0 is 2. So this is going to be twice fx. Okay, and that is equal to the f dash x that is given in the question. Okay, so this is the very simple proof. Okay, so I hope it is clear to you. Let's go for the next question, and we will discuss this question now. So let's use the definition. Definition is f dash x equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx
So here you can use what, h tending to 0. So when h tending to f0 and fx minus fx, so h tending to 0, so what you can do, this is going to be x plus h whole square. So what you can do in this case, so f0 is what, basically let's try to understand the f0. So we have to find f dash 0 here. What we have to find? F dash 0. So what you can do, in place of x you can write f dash 0. So limit h tending to 0. In place of x write 0. So fh minus f0 divided by h. What is the value of f0? That is the question. Value of f0. So let's, you can do one thing. In place of x write 0. So f of 0 less than or 0 square. As you know that mod cannot be less than 0, it is going to be equal to 0. Okay, in this case f0 is equal to 0. So this is going to be what, this is going to be 0. Now question will become limit h tending to 0 f h divided by h. Okay, so this is your simple question. Now f0, so you have to find this, and f0 is what, f0 is 0, and this is what, this is going to be 0. So now 0 by 0, so basically this will become f dash h, and h tending to 0, so this will be 0. Okay, and now f dash, so now if you want to, you don't want to write f dash, that's also fine. If you want to write like this, that's fine. Otherwise fh, fx is what, x square, so this will become like this, h square by h limit h tending to 0, and this will become limit h tending to 0. Okay, and this is what, this is the h, this is the basically h. Okay, so if you, now if you want h tending to what, h tending to 0, so basically this is going to be 0. Okay, so now f dash 0 is going to be what, f dash 0 is going to be the 0. Okay, that is your answer. Now let's go for the next question. And the next question is just in front of you. Question is saying that functional equation is given, fx plus y by 2 equal to fx plus fy divided by 2 for all x and y belongs to the real number. If f dash 0 exists, ये क्या है, f dash 0 है आपका, exist and equal to -1, f0 is 1, then find f2. ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, जस्ट यूज करते हैं डिफिनीशंस का जो आपने अभी तक पढ़ी है, और उसी के सहारे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर x प्लस एच दिया हुआ है और यहाँ पर तो आपको x प्लस वाई बाई 2 दिया हुआ है। एक काम कर सकते हैं अपन लोग, और वो कौन सा काम है, और वो काम ये है कि इस साइड पे अपन लोग x को रिप्लेस करते हैं 2x से, यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन, ओके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और y को रिप्लेस करते हैं 2i से, तो अपन लोग क्या पाएंगे, अपन लोग पाएंगे f x प्लस वाई, क्योंकि 2 हमने कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दिया, और ये बचेगा f 2x f 2i डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस वाई की। तो यहाँ पर आपको ये बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2x प्लस f 2h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 होगा तो 2 हमने यहाँ कर दिया, और बाई 2h ऐसे कर दिया हमने। ठीक, अब इसमें क्या है दिया हुआ है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट, क्या दिया है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -1, f0 is 1। ओके, सो एफ डैश 0 एग्जिस्ट, तो मीन्स x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी ताकि हमारा एफ डैश 0 बन जाए। तो लेते हैं फिर हम लोग वैल्यू, x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो बनेगा एफ डैश 0 और लिमिट
h tending to 0, f 0, f 2h minus 2 f0 divided by 2h। f0 की वैल्यू क्या होगी, दैट्स द क्वेश्चन। f0 की वैल्यू क्या होगी एंड हाउ टू फाइंड दैट। सो यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, x और y दोनों को रखते हैं 0। x और y दोनों को रखते हैं 0। क्यों? क्योंकि हमें f0 की वैल्यू पता चल जाए, तो रखते हैं 0। f0 प्लस f0 प्लस f0 डिवाइड बाई 2, क्या मिला, ओनली f0। नहीं 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 नहीं, f0 की वैल्यू दी हुई है, हमें घबराना नहीं है। f0 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है, क्या दी है, f0 की वैल्यू दी हुई है 1। क्या दी हुई है, 1। एंड f डैश 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, f डैश 0 की वैल्यू दी -1। ओके, तो डोंट वरी, इस प्रॉब्लम इज सॉल्व। f डैश 0 इज -1 इक्वल टू f2h -2f0 f0 minus f0, and f0 is what, f0 is 1 divided by 2h limit h tending to 0। ओके, तो अपन लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो f0 is 1, what is this, f0 is 1। so basically if you solve it, you can, if you want, you can write like this also। how, let me explain। h tending to 0, f 2h plus 0 minus f0 divided by 2h। okay, so this will become what, this will become 0। so 2h, what do you think, this will become what, f dash 0। so what we are getting from here, f2 we have to find out, what we have to find out, we have to find out f and 2। so that's very, f dash x f2x minus 2fx। ओके, सो यहाँ पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को हमने 0 कर दिया, शायद ये गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर 0 पुट करके, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 कर दिया ना, तो फंक्शन हमारा पूरा गायब ही हो गया। देखिए हमारा पूरा एफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स टर्म्स में कुछ आएगा तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 जो हमने 0 किया ना, 0 नहीं करना चाहिए, हमें एक्स ही रखना चाहिए, क्योंकि हमने 0 कर दिया तो सब कुछ। अब ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश 0 ही आएगा, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, एफ डैश 0, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो वन थिंग हम कर सकते हैं, ओके, so let's remove these two steps, forget these two steps, okay, because these two steps are not right। okay, so forget these two steps। so this is, now it's fine, okay, now it is fine, don't worry। so don't worry, let's start it। okay, so this is becoming what, f dash x is equal to limit h tending to 0, f 2x plus f
2h minus 2fx divided by 2h. Okay, so this is the question. Okay, now let's forget about it, forget about it. Okay, now let's try to only focus here. So what you can do for this, you can do one thing, and that is here y. You can do one thing, let's put y equal to 0. Okay, so in this equation let's do one thing, put y equal to 0 and put y equal to 0, and you will get fx equal to f2x plus f0 divided by 2. So 2 will come this side. Okay, so f2x minus. Okay, now it is solved. तो इस साइड क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, सोचना भी होता है, अगर हम सही से नहीं सोच पाए तो हम गलती कर देंगे, ठीक ना। f2x माइनस 2fx इक्वल टू माइनस f0। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2x minus 2fx is minus f0 plus f2h by 2h। इससे अलग क्या मिला हमें, अलग एक ही मिला, और वो ये हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे f2h minus g plus 0 and this। okay, so f0 is what, f0 is going to be, don't worry about that, so this is going to be f dash 0। ओके, समझ रहे हो ना, एफ टू एस प्लस जीरो माइनस एफ जीरो बाई टू एस समथिंग माइनस, सो दिस इज गोइंग टू एफ डैश जीरो। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स बचा हुआ, हमारा एक्स बचा हुआ, इससे हमारा काम हो जाएगा। एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो क्या है हमारा, एफ डैश जीरो है हमारा इक्वल टू माइनस वन। हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन। अभी आपको शायद इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज ना हो, तो आप इसको मान के चलिए कि ऐसा कुछ होता है, डी एफ इक्वल टू माइनस डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड एंड यू विल गेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ऐसा होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए, तो एफ जीरो इक्वल टू सी, एंड एफ जीरो इज व्हाट, एफ जीरो इज वन, सो सी इक्वल टू वन, पुट हियर एंड यू विल गेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू चाहिए, पुट करिए, टू एक्स इन प्लेस ऑफ टू, एक्स पुट टू, सो माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, दैट इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये मेथड हमने लगाया और हमको लगा कि यार मेथड थोड़ा सा लंबा है, ठीक ना, मेथड अच्छा है, अच्छे काम का है। एक मेथड हम और ट्राई कर लेते हैं एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन के, और वो कुछ हमारा मेथड होगा दूसरा मेथड, और वो मैं उसको नाम दूंगा m सेकेंड। ओके, एंड हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस प्लस वाई डिवाइड बाई टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, चलते हैं एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में कर लीजिए चाहे वाई के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। हम करते हैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को मानेंगे कांस्टेंट। प्लीज कीप इन माइंड दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड वाई इज ए कांस्टेंट, so this is going to be 1 by 2 y 0 equal to f dash x, y we are considering as constant, by 2। okay, so now what you can do, you can do one thing, you can put x is equal to 0, so put x is equal to 0 and replace the y by 2x and you can get your आंसर। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज आपको लिखना, अपने से लिखते रहिएगा, इसका कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं, मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है। y is equal to 2x by 2 इक्वल टू, ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, f डैश x, और ये आपको हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, f डैश x इक्वल टू जीरो हुआ ना, तो ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये जाएगा जीरो, और y को रिप्लेस कर दो 2x, तो आएगा f डैश
एक्स इजकल टू एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो आपको कितना है, ये आपका है 1, तो ये होगा एफ डैश एक्स इजकल टू 1। ओके, सो एफ डैश जीरो इज शॉर्ट 1 आर समथिंग डिफरेंट, एफ डैश जीरो इज -1 यार, नॉट 1, तो याद दिलाओ यार। और अब क्या है, बस वही हो गया, वही क्वेश्चन बन गया जो बना था यहाँ पर, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी हो गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा f2 का कितना, -1। ओके, आई होप यू कैन डू इट। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस इट इज़ वेरी इजी। तो ये भी दो तरीके थे, और ये सारे आप तरीकों को सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, पर इन क्वेश्चंस पर आपको ट्राई जरूर करना है, आप ट्राई नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, ये आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि ट्राई भी ना करना पड़े और क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिशें करनी पड़ेंगी, और तब जाकर कुछ होने वाला है। ठीक, तो इसको आप देखिए, और इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल डिस्कस द PYQs बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो ओके, आई एम फिनिशिंग इट, एंड इन नेक्स्ट क्लास, next episode, there will be discussion of PYQs, so please don't forget to see that video. Okay, and there will be PYQs of only JEE main, so please focus there, and that's really beneficial for you. Okay.